السلام علیکم۔ کہانی اب میں آپ سب کے لیے دیدہ و دلفر شعرا۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں۔ پہلی کہانی کا نام ہے سودا، رائٹر دعا ایوب۔ تو پھر سن لیجئے۔ شام کے سائے سمٹ رہے تھے، اندھیرا انہیں نگل رہا تھا۔ دستگیر نے آسمان کو سرخ ہوتے دیکھا تو واپسی کے لیے قدم موڑے۔ کندھے پہ کدال اٹھائے وہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ گھر کی طرف کے راستے تھکن کیسے سمیٹ لیتے ہیں، جیسے قدم قدم پہ ماں کی دعائیں بکھری ہوتی ہیں، ماں کی باہوں کی طرح سمیٹ لیتی ہیں ساری الجھنیں۔ لکڑی کا سال خوردہ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ پھپھو آئی بیٹھی تھی، وہ صحن میں امی ابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آ گیا دستگیر پتر، اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، جی اماں۔ وہ نلکے پہ منہ دھونے لگا۔ اماں کھانا نکالنے کچن میں چلی گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتا پھپھو کے پاس آیا اور ان سے سلام دعا کی۔ پھپھو کبھی کبھی آیا کرتی تھیں، اس لیے ان سے زیادہ بے تکلفی نہ تھی۔ چنانچہ سلام اور حال چال کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اب اور کیا پوچھے۔ شکر ہے کہ اماں نے اس کی سوچوں کو زیادہ طویل نہ ہونے دیا اور دور کونے میں پڑی ایک چارپائی پہ اس کا کھانا لگا دیا۔ رات کو ابا نے حساب کی پرچی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اتنا خرچہ دستگیر؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ کیا کروں ابا، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کھاد اور سپرے تو لازمی ہوتی ہیں، فصل کے لیے کیا کروں؟ پر پتر پھر تو ایسا ہوگا کہ فصل کے جتنے پیسے آئیں گے سارے قرضہ اتارنے میں ہی لگ جائیں گے، تیری محنت کا کیا فائدہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں ابا، لگتا ہے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس زمین سے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تھوڑا مایوس نظر آیا دستگیر۔ پتہ ہے آج تیری پھپھو کس لیے آئی تھی؟ اماں قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا کسی خاص کام سے آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ابا اور اماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابا گلا کھنکار کر اس کی طرح متوجہ ہوئے۔ وہ تیری پھوپھی گل رخ کے لیے تیرے رشتے کی بات کرنے آئی تھی۔ مطلب وہ اپنی گل رخ کو تجھ سے بیاہنا چاہتی ہے؟ گل رخ آپا؟ وہ حیران پریشان انہیں دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے، مگر اگلے ہی پل اماں نے تصدیق کر دی۔ ہاں گل رخ بیچاری کتنی دکھیاری ہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی شوہر نے طلاق دے دی۔ تب سے دیکھا کیسا اجڑا حال بنا لیا، دیکھ دیکھ کر دل کٹتا ہے۔ دستگیر نے مزید حیرانی سے اماں کو دیکھا۔ ہمیشہ گل رخ کو مغرور، بدتمیز، جانے کیا کیا کہنے والی اماں آج اسے دکھیاری کہہ رہی تھی۔ لیکن اماں وہ تو مجھ سے بڑی ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں آپا کہہ کر بلایا ہے۔ پھپھو نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ ارے بڑی ہے تو کیا ہوا، اتنی نازک سی تو ہے، تیرے قریب کھڑی ہو تو تجھ سے 2-4 سال چھوٹی ہی لگے گی۔ وہ 18 سالہ لڑکا اپنی ماں کو دیکھنے لگا، اس کے لیے ہمیشہ چاند سے دلہن لانے کی باتیں کرنے والی ماں کے معیار پہ اس سے 6 سال بڑی اور خاصی صحت مند گل رخ پوری اتری تھی۔ کیسے یہ کیسے ہوا؟ ابا آپ نے پھپھو کو فوراً منع کیوں نہیں کر دیا؟ میں گل رخ آپا سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا سوچ کر بھی، اس نے آنکھیں زور سے میچ کر کھول لی، ان کے بارے میں سوچ کر مجھے شرم آتی ہے۔ ابا اپنے حقے کو سنبھالتے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمجھا اسے ممتاز، مشکل کی گھڑی میں کسی کے کام آنا کتنی بڑی نیکی ہے، اور پھر بچی اتنی بھی بری نہیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں شروع ہو گئیں۔ پہلے انہوں نے اسے گل رخ کی خوبصورتی کے قصے سنائے، پھر آہ بھر کر کہا بس قسمت بری تھی بچی کی، 6 مہینے بعد ہی طلاق کا دھبا دے کر میکے بھیج دیا۔ ارے اب کون شادی کرے گا اس سے؟ ہر کوئی یوں ہی سوچے گا کہ کوئی نقص تو ہوگا لڑکی میں جو 6 مہینے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ وہ اس کے تاثرات دیکھنے کو رکیں۔ دستگیر تو نے تو اسے کئی مہینوں سے دیکھا ہی نہیں، حال سے بے حال ہو گئی، ہر وقت گم سم چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ سچ کہوں تو یہ سب دیکھ کر میں اس کے پرانے رویے معاف کر چکی ہوں۔ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے دکھ سانجھے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میں کیوں اماں، میں ہی کیوں؟ کیا پھپھا کے خاندان میں کوئی ایک شخص بھی نہیں جو ان سے شادی کر سکے؟ اس نے احتجاجی لہجے میں پوچھا۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو تیری پھپھی ہاتھ جوڑ کر ہم سے مدد مانگنے کیوں آتی؟ دونوں جی اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہیں، اور پتر اگر اللہ نیکی کا موقع دے تو اسے ضائع تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر گل رخ اچھی شریف لڑکی ہے، دیکھی بھالی، بذرا عمر میں بڑی ہے تو کیا ہوا؟ کئی جوڑے اس فرق کے باوجود اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں سوچ تو صحیح۔ اس رات گفتگو کا اختتام ہو گیا۔ وہ تاروں کے نیچے لیٹا سوچتا رہا۔ گل رخ، اس کے لبوں پر کئی بار یہ نام آیا۔ بالآخر مسکراتے ہوئے کہا، گل۔ دل کے خالی صفحے ہوں تو کوئی بھی نام بڑی آسانی سے لکھا جاتا ہے۔ صبح اس نے کام پہ جاتے ہوئے اماں سے کہا، میری شادی کا معاملہ آپ ہی کے حوالے اماں، اگر آپ کو گل رخ اچھی لگتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اماں نے نوٹ کر لیا کہ پہلی دفعہ اس نے گل کو گل رخ آپا کے بجائے گل رخ کہا تھا۔
بعد کے معاملات جلدی جلدی طے ہوئے۔ پھپھو اور ان کے معاشی حالات میں بڑا فرق تھا۔ پھپھا شہر کے مشہور وکیل تھے، آمدنی اچھی خاصی تھی، اس لیے نکاح کے انتظامات بھی شاندار رہے۔ رخصتی 6 ماہ بعد طے پائی اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دونوں بچے ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے۔ نکاح کے بعد وہ اکثر پھپھو کے گھر جانے لگا، یوں لگتا کہ دل کی ڈوریاں اس گھر سے بند ہو گئی ہیں۔ لیکن جس کے لیے جاتا تھا وہ اکثر اس کے سامنے ہی نہ آتی، اس کے سامنے نہ آنے کو اس کے شرمیلے پن کی رعایت دیتے ہوئے پھپھو سے بات کرتے ہوئے خواہ مخواہ مسکرائے جاتا۔ ڈرائنگ روم کے ہر کونے میں کسی کی 2 آنکھیں جھانکتی نظر آتی۔ اپنے کچے صحن میں لیٹا وہ سوچے جاتا، گل آئے گی تو یہ کرے گی، گل آئے گی تو وہ کرے گی۔ اکتوبر کی ٹھنڈی ہواؤں میں کرتا اتار لینے کے بعد بھی پھر اسے سردی نہ لگتی۔ ایک دن وہ پھپھو کے گھر گیا تو ملازمہ نے بتایا کہ گھر میں گلرخ بی بی کے سوا کوئی بھی نہیں اور وہ بھی اپنے کمرے میں ہے۔ دستگیر کے دل کی مراد بھر آئی۔ ملازمہ کو اسے بلانے سے منع کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں؟ کسی کو دیکھ کر سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ دستگیر کا لہجہ شگفتگی سے بھر گیا۔ ماما گھر پر نہیں ہے، میں تم سے ملنے آتا ہوں گلرخ۔ وہ 2 قدم آگے آیا، وہ تھوڑی پیچھے ہوئی۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میں ڈر نہیں رہی، لیکن تمہیں مجھ سے ملنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہمارا نکاح کس طرح ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا حالات تھے۔ گلرخ کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ دونوں کے لیے سب قبول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن گل، یہ سب فیصلے تو اللہ کے ہیں نا، ہم تو بے بس مخلوق ہیں، اس کی جوڑے تو وہی بناتا ہے۔ گل چپ رہی۔ دستگیر کی نظر سامنے بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر دھری ایک تصویر پر پڑی۔ وہ یکدم سب بھول گیا۔ اس نے گلرخ سے کہنے کے لیے سوچا ہوا تھا۔ وہ گل کی اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کی تصویر تھی۔ دستگیر کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ گل، تمہیں کم از کم اب یہ تصویر یہاں سے ہٹا دینی چاہیے۔ اس کی جگہ یہ تم ہمارے نکاح کی کوئی تصویر کیوں نہیں رکھتی؟ ارے دستگیر بیٹا! دروازے پر پھپھو کھڑی تھی، وہ دونوں چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے آنے سے پہلے خبر کیوں نہیں کی؟ میں تمہاری پسند کا کھانا ہی بنوا لیتی۔ نہیں پھپھو، قدم قدم چلتا ان کی طرف آیا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس چلتا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد بھی وہ من تشنہ ہی رہا۔ سوچتا شاید اسے بھی اس رشتے کو قبول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، دل کوئی پتھر تو نہیں جو پگھل نہ سکے۔ ایک بار وہ اس کے گھر آ جائے، اس کی محبت اسے ماضی کے سارے غم بھلا دے گی۔ وہ ایک نئی گلرخ بن کر سامنے آئے گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ اس کے گھر میں اتر آئی۔ دستگیر کو آج کی رات اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات محسوس ہو رہی تھی۔ گلرخ کے گریز بھرے رویے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھا اپنی خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ اس کی عجیب نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے بتاتا رہا کہ پچھلے 6 مہینوں میں اس نے اس کے لیے کیا کیا سوچا ہے۔ میں سوچتا تھا تم نازوں میں پلی ہوئی ہو، پھپھا کے گھر میں سہولتوں میں زندگی گزاری ہے، تم نے پتہ نہیں ہمارے ماحول میں گزارا کر سکو گی یا نہیں۔ لیکن پھر اماں نے بتایا کہ اللہ نے لڑکیوں کی فطرت میں بڑی لچک رکھی ہے، اور یہ بھی کہ وہ جس لڑکے کو قبول کر لیتی ہیں اس کا سب کچھ قبول کر لیتی ہیں۔ وہ اس کے حنائی ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ گل، تمہارے لیے جو میں 1 سال پہلے محسوس کرتا تھا، جو اب محسوس کرتا ہوں، اس میں بہت فرق ہے، مگر شاید اسی کو زندگی بولتے ہیں۔ تم میں اور مجھ میں اتنے فرق ہونے کے باوجود میں قسم کھا کر کہتا ہوں گل کہ مجھے شادی پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں اپنی آنے والی زندگی کا ہر سال تمہارے ہمراہ خوش کن سے خوش کن دیکھتا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی اس رات کہا، گلرخ نے ایک بھی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بس عجیب نظروں سے اسے دیکھتی خاموشی سے سنتی رہی۔ ولیمے کی شام وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہی تھی جب وہ اندر آئے۔ گل، اتنا سامان تم کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ اسے لگا مکلاوے کو خاصا لمبا کر دے گی، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ مذاق نہ کرو یار۔ مذاق؟ وہ سیدھی ہوئی۔ مذاق تو تم کر رہے ہو کل سے۔ میں نے کیا کیا مذاق؟ وہ محبت کا اظہار، میرے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش، وہ سب کیا بکواس تھی؟ وہ بکواس نہیں تھی گل، اس نے اسے سمجھانا چاہا، وہ میرے سچے جذبات تھے۔ مجھے تمہارے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھے تم؟ مجھے اب گھر جانا ہے۔ اس نے بیگ بند کر کے نیچے اتارا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے گل، دستگیر نے اپنے لہجے کو کچھ حد تک سخت کرتے ہوئے کہا، تم یہیں دل لگانے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم مہمانوں کے سامنے تماشا کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کون سا تماشا؟ دیکھو، گل نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ماما اور ماموں نے بہت محنت کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ساری محنت برباد ہو جائے۔ ہٹو، مجھے جانے دو۔ تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ دستگیر مزید آگے ہوا۔
اگر مہمانوں کی فکر ہے تمہیں تو وہ جا چکے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہارا لہجہ اس قدر سخت کیوں ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں کیے جا رہے ہو؟ کہیں تمہاری نیت میں فطور تو نہیں آ گیا؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں خبردار کر دوں۔ اعجاز کے ہاتھ بہت لمبے ہیں کہ گنڈوں سے اس کے پرسنل تعلقات ہیں، ایک اشارے پر تمہیں دوسرے جہاں میں پہنچا دیں گے۔ اور اس کے بعد کے لفظوں پر تو کیا غور کرتا، وہ اس کے منہ سے اس کے سابقہ شوہر کا نام سن کر ششدر رہ گیا۔ تم ہماری شادی کے دن پہلے ہی دن اعجاز کی بات کیوں کر رہی ہو؟ بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کر پا رہا تھا۔ تم واقعی نہیں جانتے یا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا نہیں جانتا میں؟ یہی کہ یہ شادی کیوں ہوئی ہے؟ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کیا تمہارے پیرنٹس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہی کہ یہ شادی حلالے کے لیے ہوئی ہے، نہ میں کبھی تم میں انٹرسٹڈ تھی نہ اب ہوں۔ تمہارے ماں باپ نے ماما کے ساتھ ڈیل کی تھی جو یہ تھی کہ شادی کی ایک رات کے بعد تو مجھے طلاق دو گے اور ہم بدلے میں نانا کی جو زمین ماما کے پاس ہے تمہارے نام کر دیں گے۔ بس اتنا سا تعلق تھا ہمارا، سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا۔ اب کوئی طاقت مجھے اعجاز کے پاس واپس جانے سے روک نہیں سکتی۔ دستگیر کو یوں لگا کمرے کی چاروں دیواریں ایک ایک کر کے اس کے اوپر گرتی آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ۔ تم کیا بات کر رہی ہو؟ یقین نہ کرتے ہو اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا؟ ایسا نہیں ہے۔ گل نے زور لگا کر خود کو چھڑایا۔ جاؤ اپنے ماں باپ سے پوچھو۔ دستگیر ایک کھوئی کیفیت میں چلتا اماں ابا کے پاس آیا۔ اس نے ان کے دھواں ہوتے چہرے دیکھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے لہجے کو نارمل کرتے ابا آگے بڑھے۔ دستگیر پتر، کوئی بات نہیں، تجھے کون سا لڑکیوں کی کمی ہے پتر؟ ہم نے سب تیرے لیے ہی کیا ہے۔ تیری پھپھو سے ملنے والی زمین بیچ کر ہم کریانہ سٹور بنائیں گے، آمدن بڑھے گی، حالات بدلیں گے، تیرے اور تیری بہنوں کے لیے اچھے اچھے رشتے ملیں گے، زندگی بدل جائے گی ہماری۔ اچھے رشتے؟ وہ ایک غمزدہ ہنسی ہنسا۔ کیسے رشتے ابا؟ گلرخ جیسے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے پتر؟ اماں بولی۔ ہر دفعہ ایسا تھوڑی ہوگا، گل کی دفعہ ہم لالچ میں آ گئے تھے۔ تیری پھپھی بھی دھی کے ہاتھوں مجبور تھی اور ہم غریبی کے ہاتھوں۔ اماں وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا جیسے کسی نے اچانک سوتے سے جگا دیا تھا۔ پر بہت دیر ہو گئی، شاید، اے دل، بہت دیر۔ غریب کے پاس جذبات ہی تو خالص ہوتے ہیں، تم نے ان کا بھی سودا کر دیا۔ سودا کرنے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ابا تم نے ہمیشہ مجھے بھول کی کہانی سنائی، پیسہ بنانے کے لیے نئے نئے طریقے بنائے، یہ طریقہ تو کبھی نہیں بتایا تھا۔ میں تمہاری دنیا کے ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو زر کے بدلے اپنا سب کچھ گروی رکھوا سکتے ہیں۔ میرے لیے تو محبت سب سے زیادہ قیمتی تھی اور اسی لیے میں نے اسے سچے موتی کی طرح اس لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا جو میری زندگی میں آنے والی تھی۔ میں نے کسی لڑکی کو مڑ کر اس لیے نہ دیکھا کہ کہیں قدم اسیر نہ ہو جائیں اور دوسری نگاہ ڈال کر اپنی محرم سے بے وفائی کا مجرم نہ گردان نہ جاؤں۔ جب تمہاری مرضی سے میری زندگی میں ایک لڑکی آ گئی اور میں نے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا سمیت اس سچے موتی کے، تو تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ سب ایک کھیل تھا۔ اب جیب کی طرح میرا دل بھی خالی ہے، اب مقدر اور محبت دونوں کا غریب ہوں میں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح وہ یہ سب کہہ نہ سکا، فقط اتنا ہی پوچھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس لیے بیٹا کہ تم تھوڑے جذباتی ہو۔ تیرے ابا کہنے لگے کہ تو انکار کر دے گا، اور پھر تمہاری پھپھی کی بھی یہی رائے تھی کہ تمہیں نہ بتایا جائے۔ وہ گھر سے نکل کر جانے کہاں کہاں چلتا رہا۔ شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، کہاں ایسی بھی ہوتی ہیں، نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی ہے۔ وہ گلرخ کا بھائی اس سے مخاطب تھا، ہم سب نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے اعجاز نے اسے کیا پٹیاں پڑھائی ہیں کہ اس کی سوئی اسی پہ اٹک کر رہ گئی، اور اس نے امی ابو کو بھی اس سب پر راضی کر لیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ وہ سمجھ جائے تم اس کی زندگی کا گولڈن چانس ہو۔ میں کوئی گولڈن چانس نہیں ہوں بھائی، میں صرف پاس ہوں۔ اس نے کہا، وہ میری وہ محبت تھی جسے محبت کہنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ شاید میری ساری زندگی یہ سوچنے میں گزر جائے کہ کیا لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، سامنے شفاف پانی کو چھوڑ کر کیچڑ میں گرنے والی، تھوک کر دوبارہ چاٹنے والی، اور اگر وہ ایسی ہے تو نادم ہوں کہ اتنا عرصہ میں نے اس کی چاہت کی۔ اس نے طلاق کے پیپرز اپنے دل کی پوری مرضی سے سائن کر دیے۔ زمین کے کاغذات واپس کرتے ہوئے اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس چیز کی قیمت ادا نہ کریں جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اعتبار قائم کرنے میں بھی برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس شام اماں اس کے پاس ایک لڑکی کے لیے بات کرنے آئیں۔ مجھ سے اب کسی لڑکی کے بارے میں بات مت کیجیے گا اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جب کرنی ہوگی تو خود لڑکی ڈھونڈ لوں گا۔ سخت لہجے میں کہتا اٹھ گیا تھا، اور اماں کو اس کی بات سے کتنا تڑپایا تھا یہ کوئی انہی سے پوچھتا۔ کہہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ سب زہر کو جتنا اندر چھپا کر رکھے گا اتنا ہی کڑوا ہوتا جائے گا۔
अगले दिसंबर से खबर मिली एजाज ने दोबारा गुलरुख को तलाक दे दी थी। वो बाश और अय्याश लड़का था और अभी से कोई तवाइफ भाग गई थी। वैसे गुलरुख की ज़ुबान भी कुछ कम तेज़ ना थी। फिर ज़िंदगी मसरूफ़ सी हो गई, फसल अच्छी हुई, हालात बेहतर होने लगे। यके बाद दीगरे इसके पसंद किए हुए लड़कों से राबिया और सारा की शादियाँ हो गईं। घर सोना लगने लगा था। फुप्पो ने एक बार फिर, चुनाचे अम्मा ने दोबारा फिर बात छेड़ी। उनके घर पर दस्तक दी थी। घर खाली खाली हो गया बेटा, अब इजाज़त दो हम तुम्हारी दुल्हन भी ले आएं। दस्तगीर इस बात में सर हिलाकर चला गया। अगले दिन उसके साथ एक सुर्ख आंचल में लिपटी हुई लड़की अंदर दाखिल हुई। अम्मा अब्बा हैरान परेशान उठ खड़े हुए थे। यह आपकी बहू है सवेरा, हमने शादी कर ली है। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है ज़माना शनास। राइटर नरगिस नसीम। आमना बहन, ये क्या कह रही हैं आप? मासी मीनू को लगा शायद उसे सुनने में गलती हुई है, तभी तजस्सुस में आकर हैरत से महवे सवाल थी। वही जो तुम्हारे कानों ने सुना। आमना के कहने पर मज़ीद हैरत ज़दा रहेगी। लेकिन क्यों बहन? बस मासी, इस सवाल का जवाब अंसर की शादी के बाद खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। और मासी, अगर लड़की मेरी पसंद के मुताबिक मिल गई ना तो फ़ीस के साथ बहुत सा इनाम भी दूंगी। बस ध्यान रहे जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। क्यों नहीं बहन, फ़िक्र ही ना करो, ऐसी लड़कियां बहुत। अच्छा मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारी मनपसंद बहू तुम्हारे आंगन की जीनत बनेगी। लेकिन एक बार फिर से कहे दे रही हूँ, अच्छी तरह सोच लो। तुम खुद सीधी सादी भोली भाली क्या ऐसी लड़की के साथ तुम गुजारा कर लोगी? कहीं ऐसा ना हो वलीमे की तकरीब ही से बहू तुम्हारे बेटे को ले उड़े। अब ऐसी बात भी नहीं मासी, मुझे अपने बेटे पर एतमाद है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे अपने रब पर भी यकीन है कि वो वैसा ही होगा जैसा मैं सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मासी, जिसने शटल का बुरका जो आती उतार कर चारपाई पर रख दिया था उठाया, ओढ़कर जाने को तैयार हुई। ठीक है मासी, अल्लाह के हवाले। इसे खुदा हाफिज़ करके आमना ने दरवाज़ा बंद किया। चारपाई पर बैठकर सोचने लगी, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं करने लगी। कहीं ऐसा ना हो जैसा वो सोच रही है इसके बरक्स ही हो जाए। कहीं अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में बहू बेगम इसके बेटे को ही ना ले उड़े। लेकिन ये रिस्क तो इसे लेना ही था। आमना बहुत सीधी सादी सी थी। बेटी तो कोई थी नहीं, बस 3 बेटे थे, वो भी ज़माने की चालाकियों से नाशना। आमना की सादगी का हर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता। बार बार ठोकर भी खाती, हर बार सोचती अब किसी पर एतबार नहीं करेगी। लेकिन क्या करती, अल्लाह ने इसका दिल ही इतना नर्म बनाया था, वो किसी को दुख दर्द में देख कर रह ही नहीं सकती थी। हर कोई इसकी शराफत का हद से बढ़कर फ़ायदा उठाता। इसी रहम दिली के हाथों महीने भर का राशन बमुश्किल 15 दिन ही चल पाता। ये नहीं कि इसका खाविन कम लाता था, वो तो हिसाब किताब खर्चे के मुताबिक पूरे महीने भर का ही लाता। लेकिन मोहल्ले वालियाँ, आमना एक प्याली चीनी तो दे दो, बस वापस कर दूंगी फिर। और इनकी फिर कभी वापस नहीं आई। कोई मसाला, कोई घी तो कोई आटा मांगते वक्त बेवक्त आए रहता। हत्ता कि हांडी बनाती तो अपने घर वालों के अलावा 3-4 बंदों का ज़्यादा ही सालन बनाती। कोई ना कोई सालन मांगने आ जाती, कोई हाल अहवाल पूछने के बहाने ऐन खाने के वक्त पर आ जाती। शौहर के काम पर रवाना होती जो औरतों का तांता बनता तो फिर एक आ और एक जा, शाम तक यही होता। अपनी मर्ज़ी की तो इसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं थी। कभी जो पकौड़े या बिरयानी खाने का जी चाहता, खुशबू फैलती, सब धावा बोल देती। ज़रा जो आमना का मुंह बन जाता तो उल्टा इससे ही बोलचाल बंद हो जाती। और मोहल्ले वालियों की नाराज़ी बेचारी कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। यही वजह थी जब आमना ने बेटे की शादी करना चाहिए तो रिश्ता करवाने वाली मासी को अव्वल शर्त यही बताई, लड़की लाजमी होशियार और चालाक हो, कोई सीधी अल्लाह मियाँ की गाय मेरे जैसी बिल्कुल ना हो। इसने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया था। जब ही मासी हैरान भी हुई कि लोग तो लाजमी रिश्ता करवाते वक्त कहते हैं कि बस तेज़ तर्रार ना हो, और यहाँ आमना की शर्त के खूबसूरत भले ज़्यादा ना हो मगर हो खूब होशियार और समझदार। और आजकल के दौर में तेज़ तर्रार लड़कियों की भला कोई कमी है? आमना को भी मनपसंद लड़की मिल ही गई। मासी मीनू ने एक रिश्ता बताया, लड़की वालों से बात की और वो चल पड़ी फ़ौरन लड़की देखने। आमना ने अचानक लड़की वालों के घर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि पता चले कि आया गोहरे मकसूद उनकी पसंद का है भी या नहीं। मासी मीनू और आमना रिक्शे से उतरकर मतलूबा गेट पर पहुंची। बेल बजाना ही चाहिए तो खुले गेट को देखकर मासी मीनू बेतकल्लुफ़ी से अंदर बढ़ गई। साथ ही आमना को भी घसीट ले गई और अंदर का मंजर देखकर, बातचीत सुनकर आमना ने चट लड़की और पट की पसंद की पट से शादी की तैयारियां करके ब्याह कर इसे घर भी ले आई।
اور لڑکی کی ماں بیچاری کو شاید ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے گنوں والی میری بیٹی، جس کے گن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو بھلا کون پسند کر سکتا ہے۔ ولیمے اور چوتھی کی رسموں کے بعد آمنہ نے اپنی بہو وانیہ کو پاس بلا کر سارے حالات بتائے اور سمجھایا کہ یہ گھر اب تمہارے حوالے کس طرح رہنا ہے، مجھے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ خود سمجھدار ہو۔ ماں جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں دیکھتی ہوں ان مفت خوروں کو، اور آپ نے مجھے بیٹی سمجھ کر جو اعتماد بخشا ہے انشاءاللہ یہ اعتماد ٹوٹے گا نہیں۔ بس اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ وانیہ نے ساس کی پوری باتیں اچھی طرح سمجھ کر انہیں یقین دہانی بھی کروا دی۔ بس اب میں جانوں اور میرا کام، آپ اپنے بیٹے کو سنبھال لیجئے گا۔ آمنہ اسے دعائیں دینے لگی اور ساتھ ہی رب کی شکر گزار بھی تھی من پسند بہو ملنے پر۔ ارے آمنہ بہن، میں کہوں آج تمہارے گھر سے صبح سے قورمے بریانی کی مہک آ رہی ہے۔ اب سمجھی بہو بیگم نے ہاتھ ڈال دیا کاموں میں۔ اچھا کیا، ساری زندگی تو تم نے خود کام کیا، اب آرام کرو گی، بہو جو آ گئی سب دیکھ لے گی نا۔ ان کی ساتھ والی پڑوسن دروازے سے ہی بے تکان بولتی اندر آ گئی، اور اندر آ کر لاؤنج کا تنقیدی جائزہ لینے لگی کہ اب تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ آؤ آؤ شاداں بہن بیٹھو۔ آمنہ نے سلام دعا کے بعد اسے بیٹھنے کو کہا اور ساتھ ہی وانیہ کو آواز دی، جی امی ادھر آؤ بیٹی، یہ ہماری پڑوسن شاداں ہیں۔ وانیہ نے ادب سے سلام کیا، کچھ دیر میں چائے بنا کر لے آئی۔ خالی چائے دیکھ کر پڑوسن کا منہ بن گیا۔ چائے پینے کے ساتھ آمنہ سے ادھر ادھر کے بیکار باتیں، اور کچھ دیر بعد بولی، آمنہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، ذرا چکھانا تو بریانی دیکھوں تو بہو بیگم کے ہاتھوں کا ذائقہ۔ آمنہ تو چپ سی ہو گئی، لیکن وانیہ اندر سے نکل آئی، سوری آنٹی برا نہیں منائیے گا، بریانی دم پر ہے، اگر ایک بار دم اتار دیا تو چاول تو ٹھنڈے پڑ جائیں گے، بس اب انکل اور انصر لوگوں کے آنے پر ہی دم کھلے گا۔ وانیہ کے یوں جواب دینے پر شادہ پھر بیٹھی نہیں، تھوڑی دیر بعد خود ہی اٹھ کر چلی گئی۔ دوسرے دن ایک اور پڑوسن عین دوپہر کے وقت آن پہنچی، آمنہ بہن آج میں ہانڈی نہیں بنا سکی، ذرا ایک پلیٹ سالن تو دینا۔ ارے آنٹی آپ پہلی بار میرے سامنے سالن لینے آئی ہیں، بس شرمندگی تو ہو رہی ہے انکار کرتے، لیکن کیا کروں، رات کا بچا تھوڑا سا ہی سالن پڑا ہے جو بمشکل ہمارے اپنے لیے ہی پورا ہوگا، سوری کرتی ہوں۔ ابھی وانیہ نے دروازہ بند کر ہی رہی تھی کہ ایک اور پڑوسن آ گئی۔ اس نے بھی جب سالن کی بات کی تو آگے سے بظاہر ہنستے ہوئے وانیہ طنز کیے بغیر رہ نہیں سکی، آنٹی جی وہ ہم نے ہوٹل تو نہیں کھول رکھا نا جو محلے بھر کا سالن بنائیں گے، ایک گیا تو ایک اور آ گیا، آنے والی کو تو مرچیں ہی لگ گئیں۔ اوہوں آنٹی اس میں برا منانے والی کیا بات ہے، صبح سے نہ جانے کتنی عورتیں سالن دوسری چیزیں مانگنے آ رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کہیں میرے سسرال والوں نے ہوٹل تو نہیں کھول رکھا، تو یہ سن کر آنے والی کے کانوں سے ایسا دھواں نکلا کہ وہ بغیر کچھ کہے یہ جا وہ جا۔ ان خواتین کے جانے کے بعد دونوں ساس بہو ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوب ہنسی۔ ذرا ایک پیالی گھی تو دینا۔ اگلا دن پھر ایسے ہی کسی مطالبے سے شروع ہوا۔ کیوں آنٹی جی کیا یہ دکان ہے جو آپ ادھر آئی ہیں گھی لینے؟ سامنے تو کونے والی دکان ہے نا، وہاں سے لے لیں۔ نہیں بیٹی مہینے کے آخری دن ہے نا، گھی ختم ہو گیا، اب پیسے بھی نہیں، بس جو ہی راشن آیا واپس کر دوں گی۔ سوری آنٹی جی ہمارے بھی تو مہینے کے آخری دن ہے نا، اور بچا کچا راشن۔ غرض بہت جلد محلے والیوں کے منہ پر آمنہ کی چالاک بہو کی چالاکیوں کا چرچا ہونے لگا۔ ارے بہن سنا تم نے، یہ آمنہ بیچاری سیدھی سادی نہ جانے کہاں بیٹا پھنسا دیا، اتنی تیز ترار بہو ملی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا بیچاری آمنہ کا۔ اور آمنہ یہ سن کر سوچتی میرا تو چل چلاؤ کا وقت ہے، شکر ہے اپنی جیسی نہیں لائی، جو اپنے جیسی لاتی پھر ایک اور آمنہ۔ قارئین آگے آپ خود سمجھدار ہیں، اور بہنوں سچ سچ بتانا، خاص کر گاؤں میں رہنے والی بہنیں، اور کس کس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور کون کون آمنہ کی طرح ایسی ہی بہو کی منتظر ہے۔ کہانی نمبر 3 حاضر خدمت ہے، جس کا نام ہے موو آن، رائٹر تسلیم شیخ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو موو آن کر لیں، اس کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی سال برباد نہ کریں۔ میں پہلے کہتی تھی کہ لوگ غلط کہتے ہیں، بھلا جس سے محبت کی جائے اس کی ذات کو فراموش کر کے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جسے زندگی میں اپنا سب کچھ مان لیا جائے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا محبت کی توہین ہوتی ہے، اس صرف ہمارے ذہنوں کا خبط ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں کہتی ہوں کہ لوگ بالکل درست کہتے ہیں، کسی کے جانے کا روک پال لینے سے اچھا ہے خود کے اندر چھپی صلاحیتوں کو دیکھا اور پرکھا جائے، پھر زندگی میں کچھ بن کر دکھایا جائے، تاکہ چھوڑ جانے والے کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو کہ زندگی سے بے دخل کر دینے سے آپ کو چنداں فرق نہیں پڑتا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ ہاجرہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی دوست کو کسی سوچ میں گم پایا تو آگے بڑھ کر سوال کیا،
कुछ नहीं, बस यूं ही, सायरा ने मुस्कुरा कर टाल दिया। अच्छा पार्लर जाना है, जल्दी करो। हाजरा इसका सामान समेट कर एक तरफ रखने लगी। जो सामान इसे पार्लर लेकर जाना था, इसे वो इकट्ठा करके बाहर कार में रखवाने लग गई। सायरा इसे देखकर गहरी सांस लेकर शावर लेने चली गई। आज सायरा की दुल्हन बनना था उसे, और आज इसे सही मायनों में मूव ऑन करना था। वो बहुत कुछ बन गई, बस एक ही कसर रह गई थी कि इसे दुल्हन बनना था। वालिदैन का बोझ कम करना था। लोग, रिश्तेदार, जानने वाले सब यही सवाल करते थे कि इतनी उम्र हो गई, अब शादी कब करनी है। कभी ये सवाल सायरा से करते, कभी इसके माँ बाप से पूछते। हर बार एक ही सवाल करते, इसका दिल शादी करने को नहीं करता था, लेकिन अब मजबूरन इसे शादी करनी थी। जिससे सायरा की शादी हो रही थी, इसे पहली नज़र में इससे मोहब्बत हो गई थी, और मुश्किल से इसने खुद सायरा को शादी के लिए मनाया था। वो इसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था, साथ में डरता भी था, मतलब बहुत लिहाज करता था, क्योंकि सायरा बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन ख्याल करने वाली भी थी। इसने सायरा को एक रेस्टोरेंट में देखा और इसकी रहमदिली के एक वाक़ये ने इसे बहुत मुतासिर किया। तभी वो लड़का दिल हार बैठा। सायरा शावर लेकर आई, दोनों पार्लर के लिए निकल पड़ी। ब्यूटिशियन ने इसका मेकअप शुरू किया। सायरा माजी में खो गई। सायरा और हाजरा दोनों खालाजाद थी, और दोनों में ही बहुत ही प्यार मोहब्बत थी। एक दूसरे के गम गुसार थे। स्कूल दोनों के अलग थे, कॉलेज में भी अलग थे, लेकिन जब दोनों ने BS किया तो इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई और एक दूसरे की हमराज भी बन गई। सायरा कॉलेज के ज़माने में किसी को पसंद करती थी, और जिसे पसंद करती थी अक्सर इसे अकेले मिलने को कहता था, और सायरा आगे से इनकार कर देती। वो मर्द ज़ात से बहुत डरती थी। एक मर्द से मोहब्बत होकर बैठी थी, लेकिन इसके साथ बाहर मिलना इसे बहुत मायूब लगता था। फिर रोज़ अखबार और TV में तरह तरह की खबरें पढ़कर सुनकर वो सहम जाती। दूसरे अल्लाह का डर भी था। गैर महरम से अकेले नहीं मिलना चाहिए, ना ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। वो ख़ुद को सर्जनिश करती। इन दोनों की मैसेज पर बातचीत होती। वो एक ऑफिस में था और साथ ही TV पर छोटे मोटे रोल भी किया करता था। ख़ुद को बहुत बड़ी चीज़ समझने लग गया। अब वो सायरा से फ़ोन पर बात करने से कतराने लगा। इसके मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं देता था, और हर रोज़ सायरा इसके मैसेज का इंतज़ार करती। वो था कि जवाब देना ही गवारा नहीं करता था। फिर इसने किसी से सुना वो आजकल एक लड़की के बहुत गुण गाता है। वो लड़की इसके ऑफिस में जॉब करती थी। हर दिन सायरा को इस लड़के की याद बहुत सताती। इसके दिल में चुभन थी कि जिस शख्स के लिए इसने अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया, आज वो लड़का इसे बिल्कुल ही भूल गया। दिल था कि गमज़दा था। वो इसे याद करके अक्सर रो पड़ती। इसने दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ैसला किया कि इसे फ़ोन करे और इसे याद दिलाए कि वो भी इससे मोहब्बत करता था। अब इसकी मोहब्बत कहाँ गई? आप अब मुझसे बात नहीं करते, क्या आपको अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही? तुमने मुझसे मोहब्बत की ही कब थी? लड़के ने उल्टा गिला किया। सायरा के दिल को कुछ हुआ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, ना ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बस हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। सायरा को बहुत बड़ा धचका लगा। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसे किसी ने खाई में धक्का दे दिया। हाँ, लड़के ने ढटाई से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सायरा की आवाज़ दरुंद गई। बस जैसे कहते हैं वैसे भी तुम्हें जानता ही कौन है, और तुम में है ही क्या? मैं तो हीरो हूँ, हीरो। लड़के ने फ़ख्रिया लहजे में कहा। हाँ ठीक कहा, मुझे जानता ही कौन है। बिल्कुल, अब नए लोग जो मिल गए, आपकी जान पहचान वाले। सायरा अब तक सदमे में थी। जो मर्ज़ी समझो, मुझे परवाह नहीं। जब मिलने का कहा तो मिली नहीं, बस अब अल्लाह हाफिज़। लड़के ने सदमेहरी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सायरा ने फ़ोन को परे उछाला और ज़ारों कतार रोने लग गई। इन दिनों इस सदमे से इसकी सेहत काफ़ी गिर चुकी थी और बेहद कमज़ोर हो गई थी। मोहब्बत का रोग इंसान को रोगी बना देता है। वो सांवली सी, मनमोहनी सी, कबूल सूरत वाली लड़की थी। सायरा जानती थी इसके माँ बाप और भाई इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे। वो नहीं चाहती थी कि इसके घर वाले इस लड़के को नापसंद करें और इसका दिल दुखे, मगर इसका दिल दुख गया था। अब दिल को कौन समझाए? लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो खामोशी से पीछे हट गई। इसका नंबर भी डिलीट कर दिया, मगर यादों को कैसे डिलीट करती? अगरचे वो मिले नहीं थे, मगर इसने तो इसे देख रखा था। कभी जो इसे देखने को दिल करता तो फेसबुक पर इसकी तस्वीरें देखकर मज़ीद गमगीन हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसने इसे देखना ही छोड़ दिया। ख़ुद को मसरूफ़ रखने लगी। पढ़ाई करती रही, ऑनलाइन काम करती, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करती। यूँ धीरे धीरे बहुत लोग इसे जानने लगे और वो ख़ुद एक ब्रांड बन गई। अब इसे इस शख्स की याद नहीं आती थी। कभी अगर इसके बारे में कोई ख्वाब आ जाता तो वो हैरान हो जाती। आज 7 साल बाद वो किसी और की होने जा रही थी, मूव ऑन करने चली थी। इस बेवफा शख्स की भी शादी हो चुकी थी।
شادی کے نام پر اسے پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا، یوں لگتا جیسے شادی نہیں، ایک ذمہ داریوں کی زندگی ہے جو اسے ہر حال میں نبھانی ہے۔ وہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اسے کرنا تھا۔ اب اسے ایک مرد کے ساتھ رخصت ہونا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاجرہ نے اسے دلہن بنے دیکھا تو تعریف کی۔ اس کی تعریف پر وہ مسکرانے لگی۔ موو آن کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، سب انسان کے خود کے بس میں ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو دنیا فتح کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو جیتی ہوئی بازی ہار بھی سکتا ہے، اور ہاری ہوئی بازی جیت بھی سکتا ہے۔ ہاجرہ نے اس کا ہاتھ زور سے تھام کر تسلی دی۔ میں بہت بہادر لڑکی ہوں۔ ہر لڑکی کو بہادر ہونا چاہیے، عزت نفس ہونی چاہیے کہ کوئی اس کی ذات کو مجروح نہ کر سکے۔ وہ اس سے دوبارہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ محبت اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور غیر محرم سے محبت غلطی ہوتی ہے۔ محبت صرف اپنے محرم سے کرنی چاہیے، اور اب وہ اسی شخص سے محبت کرے گی جس نے اس کی خاطر اپنے اور اس کے گھر والوں کو منایا، جبکہ یہ بھی ایسے ہی ممکن تھا جیسے اس شخص کے ساتھ شادی کا ممکن تھا۔ دونوں میں ذات پات کا فرق تھا، لیکن کچھ کر کے کسی کو حاصل کر لینا، یہ حوصلہ سب میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار تھی جس نے اس کے اندر جینے کی نئی امنگ جگائی تھی۔ وہ تو بس ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب شادی ہو جانے کے بعد اسے لگا اب وہ زندگی جی رہی ہے۔ اسی ساتھی کا انتخاب کرو جو محبت سے پہلے آپ کی عزت کرے، آپ کی عزت نفس کا خیال کرے، آپ کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اور آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم ہو ہی کون۔ ایسے شخص کو پہلی فرصت میں چھوڑ دیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ اسے چھوڑ کر موو آن کریں اور خود کو خود ہی سنبھالیں۔ کسی کے کندھے کا سہارا کبھی نہ لیں۔ اپنی کمزوریوں، اپنے دل کا درد بس خود تک ہی رکھیں تو سب اچھا ہو جائے گا۔ سائرہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اپنی نئی کہانی کے پلاٹ کو لفظوں میں پرو رہی تھی، اور سامنے بیٹھے شوہر کی طرف عقیدت سے دیکھ رہی تھی کہ جس نے اس کا مان رکھ کر اسے زندگی جینا سکھا دیا تھا۔ کہانی نمبر 4، جس کا نام ہے سلیقہ مندی، رائٹر فرحی نعیم۔ کالے بادلوں نے بڑی تیزی سے آسمان کو ڈھانپا تھا۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند چھپ گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی، دھیرے دھیرے چلتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے بیڈ پر لیٹے معصوم وجود پر ایک نظر ڈالی، پھر وہی ہوا تھا۔ ایک برسات اس کے وجود میں بھی شروع ہو چکی تھی۔ اندر باہر یکساں موسم تھا، زیست کی ہر گھڑی اب تو اداسی کے گیت گاتی تھی۔ کامران گھر آئے تو انیلا اور اماں بڑی سنجیدگی سے باتیں کر رہی تھیں۔ انیلا کے بچے باہر صحن میں کھیل رہے تھے، سلمیٰ کچن میں تھی، چولہے اور گرمی سے نبرد آزما۔ آج بھی کامیابی ہوئی یا نہیں؟ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میاں، بس تمہارا اور انصر کا ہی انتظار تھا۔ آج ہم رشتہ دے آئے، پوری امید ہے 2-3 دن میں وہاں سے مثبت جواب آ جائے گا۔ ہاں بھائی جان، لڑکی بڑی پیاری ہے۔ انیلا نے اپنی پسندیدگی کی واحد وجہ بیان کی۔ بس خدا کرے وہ بھی ہمارے ماحول میں رچ بس جائے۔ سلمیٰ نے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ساس، نند اور میاں سے کہا، اور پیالی ساس کے آگے رکھی۔ ساتھ ہی سادے کیک کی پلیٹ نند کے آگے بڑھائی۔ ارے سلمیٰ، بچوں کو تو بلاؤ، میں نے باہر صحن میں ہی بچوں کو بٹھا دیا ہے۔ چادر بچھا دی تھی نا، کہیں وہ بھاگتے دوڑتے سارے صحن میں کیک بسکٹ نہ گرائیں۔ اماں کی ازلی سلیقہ مندی کی عادت نے انہیں بے چین کیا۔ جی میں نے چادر بچھا کر انہیں بٹھایا اور سختی سے کہہ دیا کہ اسی پر بیٹھ کر کھانا ہے۔ سلمیٰ نے ساس کو مطمئن کیا۔ اماں، انصر کی دلہن لائے گی تو کمرہ کون سا دیں گی؟ گھر بڑا لینا پڑے گا۔ انیلا نے بسکٹ ریپر سے نکالتے گھر کی طرف توجہ دلائی۔ ارے بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا اور کامران کا اس طرف دھیان نہیں گیا ہوگا؟ گھر میں صرف 3 کمرے ہیں، ایک ان کا، ایک میرا اور ایک یہ ڈرائنگ روم آنے جانے والوں کے لیے۔ انصر کو اپنا کمرہ دوں تو خود کہاں بیٹھوں گی اٹھوں گی، اور یہ ڈرائنگ روم دوں تو آنے جانے والوں کو کہاں بٹھاؤں گی؟ شادی کے خرچے پورے کریں گے یا بڑا گھر لیں گے؟ وہ گھریلو حالات کو بڑی وضاحت سے بیان کر رہی تھی۔ چھت ہوتی تو اسی پر ایک کمرہ ڈلوا لیتی، چلو رہنے قابل تو کم از کم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے گہری سانس لی۔ ایک بلاک میں 4 فلیٹ تھے، جن میں سے ایک میں یہ لوگ تھے، لہٰذا یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اب یہی سوچا کہ شادی کی تاریخ مقرر کر کے چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیں گے، پھر بعد میں سوچیں گے۔ اماں نے بات ختم کرنے کے ساتھ چائے بھی ختم کر لی تھی۔ ہائے ماں، آپ نئی دلہن کو اکیلے گھر میں، وہ کیا سارا دن تنہا رہے گی؟ انیلا نے اپنا اندیشہ بیان کیا۔ آئے ہائے، میں کیوں اسے اکیلا چھوڑوں گی؟ کوئی نہ کوئی حل تو اس کا بھی دیکھ ہی لیں گے۔ اماں کو بیٹی کی بات ذرا اچھی نہ لگی۔ اسی اثنا میں سلمیٰ اور کامران خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔
सलमा ने ट्रे में बर्तन रखे और उठ खड़ी हुई। बेटी बर्तन धोकर इसे पोंछ भी लेना ताकि ठिकाने से जाएं। बावर्ची खाना वरना फैला फैला सही लगता है, अम्मा ने कई बार की बात फिर दोहराई, बल्कि हर दफ़ा जैसी एक जैसी ताकीद करती थी। जी अम्मा, मैं जानती हूँ। 8 साल शादीशुदा ज़िंदगी में सलमा सास की खूब मिजाज आशनास बन चुकी थी। बड़ी हद तक इनकी पसंद और माहौल के मुताबिक ढल भी चुकी थी। अम्मा ठीक कह रही हैं नीला, अंसर के लिए फ़िलहाल किराए का घर ही लेना पड़ेगा, वरना शादी को मज़ीद 2-3 साल के लिए टालना पड़ेगा। इतनी जल्दी फ्लैट बेचकर नया कुशादा घर लेना जिसमें कम से कम 4 कमरे तो हों, हमारे लिए मुमकिन नहीं। प्रॉपर्टी की कीमतें भी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं। कामरान के लहजे में भी कुछ बेबसी और अफसरदगी शामिल थी। जी भाई, अनीला ने तायद में सर हिलाया, फिर पर्स लेकर उसमें से फ़ोन निकाला और मियाँ का नंबर मिलाने लगी। जी मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि वापसी में आप मुझे अम्मी की तरफ से ले लेंगे, इसने पूछा था। चंद लम्हे दूसरी तरफ से बात सुनी। आहिस्ता से जी अच्छा ठीक है कहकर बेजारी से फ़ोन वापस पर्स में डाला। क्या हुआ? अम्मा जो बेटी के तासुरात देख रही थी अबरू चढ़ाकर पूछा। नहीं आ रहे, अनीला ने बिगड़े चेहरे से कहा। अच्छा अम्मा चलती हूँ, कोने से रिक्शा ले लूँगी, उठती हुई बोली। एकदम उठ गई, अभी कुछ देर में अंसर आ जाएगा, वो छोड़ देगा। अब न जाने वो कितनी देर में आए, मैं चली जाऊँगी। अच्छा है, जल्दी जाऊँगी तो बच्चे कुछ स्कूल का काम भी कर लेंगे। इसने अपना अबाया उठाया। कामरान इस दौरान अपने कमरे में जा चुके थे। सलमा हस्बे मामूल किचन में थी। अनीला ने बच्चों को आवाज़ दी। अम्मा और भाई भावज से सलाम दुआ करके घर को रवाना हो गई। अम्मा और अनीला पिछले कई माह से अंसर के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। 2 साल पहले अंसर को एक मुनासिब मुलाजमत मिल गई थी। तब से उसकी शादी के लिए जोड़ना शुरू कर दिया। सलीका मन तो वो हमेशा से थी, थोड़े में भी घर को किस तरह चलाना है, चादर में रहकर किस तरह गुजारा करना है कि अच्छा खा भी लिया जाए, पहन भी लिया जाए, घर को भी दुरुस्त रखा जाए। इनके सुघड़ापे हुनर की मिसाल तो सारा ख़ानदान देता था। मियाँ की महदूद आमदनी में उन्होंने औलाद को पढ़ाया भी, 2 की शादियाँ भी बखैर खूबी कर दी। बेटी अनीला की शादी के साल भर बाद ही मियाँ का इंतकाल हो गया था। अब इन्हें फ़िक्र थी तो अंसर की कि वो अपने घर बार का हो जाए, इस आखिरी ज़िम्मेदारी से भी बरी ज़िम्मा हो जाए। लेकिन नहीं जानती थी कि ये ज़िम्मेदारी इतनी आसान नहीं। कामरान और अनीला की शादियां तो कुछ छान फटक के बाद हो गई थी, लेकिन अंसर की दफ़ा में या तो लड़कियों का काल पड़ गया या फिर इनकी तवक्कुआत में इजाफा। चंद दिन बाद लड़की वालों की तरफ से रजामंदी का फ़ोन आ गया था। लड़की के वालिद अपने भाई के साथ जाकर अंसर के दफ्तर में इससे मुलाकात भी कराए। इसी तरह वालदा बहनें भी अम्मा और सलमा से मिलने के बहाने एक नज़र घर भी देखने आ गई थी। घर देखकर लड़की की बड़ी बहन ने सलमा से बातों के दौरान दरियाफ्त कर लिया कि वह अंसर को शादी के बाद इसी घर में कमरा देंगी या फिर, जिस पर सलमा ने बड़े स्वभाव से अलग किराए के फ्लैट के बारे में इशारतन बता भी दिया था, जिसे सुनकर बहन ने बेसाख्ता होंठों को गोल करके भवें उचकाई और फिर सर हिला दिया था। शादी की तारीख क्या मुकर्रर हुई। काम, तैयारी, ख़रीदारी की एक तवील फहरिस्त थी। अम्मा ने शादी 3 माह बाद मुकर्रर की थी ताकि नाजिया के घर वालों और इन्हें भी सुकून से तैयारी का मौका मिल जाए। यूँ तो बाज़ार में अब हर शय बड़ी आसानी से तैयार दस्तयाब है, लेकिन इसके लिए आपकी जेब भरी होनी चाहिए। लेकिन भला अम्मा को सुघड़ापा, सलीका मंदी ये कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे कि जो काम 1000 रुपये में हो सकता है, इसे खामखा अपनी काहली और सहल पसंदी के सबब 5000 में किया जाए। अपनी खून पसीने की हलाल कमाई को बेजा खर्च किया जाए। अम्मा ने बरी की तैयारी बड़े चाव और मोहब्बत से की। दुल्हन के बारात और वलीमे के जोड़ों के अलावा भी 3 जोड़े तैयार करवाए। 1 सेट और 4 चूड़ियाँ भी उन्होंने सोने की बनवा ली थी। अपनी कफ़ायत शारी के सबब उन्होंने कम खर्च बाला नशी के मुताबिक छोटी दुल्हन के लिए कॉस्मेटिक, पर्स, जूती, दूसरा ज़रूरी सामान भी तैयार किया था। अंसर ने भाग दौड़ करके माँ से करीब ही 1-2 कमरों का छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। जहेज़ का सामान वहीं सजा दिया गया था। अम्मा ने घर से किचन का थोड़ा बहुत सामान, बर्तन, चीनी, पत्ती, कुछ मसाले वगैरह ले जाकर रख दिए थे ताकि अंसर और छोटी दुल्हन को फारिग कुछ दिक्कत ना पेश आए। रहा खाना तो अभी तो वो ससुराल में खाए और पकाएगी। 3 माह किस तेज़ी से गुजरे पता भी नहीं चला। वक्त रुखसत आन पहुंचा, दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए। दुल्हन अगर रुखसत होकर अंसर के घर आई थी तो दूसरी तरफ अंसर भी माँ के घर से किराए के घर मुंतकिल हो गया था। दुल्हन रुखसत होकर अपने छोटे से नए घर में आ गई थी। सैकड़ों उम्मीदें, आरज़ुएं, साथ नन्हे नाजुक से दिल में हज़ारों खदशात भी थे। लबों पर शर्मंगी मुस्कुराहट, आंखें हया से बोझल तो दिल में कपकपाहट भी थी।
न जाने अंसर किस मिजाज के हों, सास अम्मा नंद जिठानी के आदात। जहन में बैक वक्त कई सवाल उछल कूद मचा रहे थे। और उसके आपा का वो जुमला, अरे हमारी नाजिया तो बड़ी खुशकिस्मत है, रुखसत होते ही से तो अपनी राजधानी नसीब हो जाएगी, अकेले घर में ऐश करोगी ऐश। सास ना नंद ना ही जिठानी देवरानी, अपनी मर्जी से सोएगी, जागेगी, खाएगी और पिएगी। दिन रात इन जुमलों की गर्दान सुन सुन कर वाकई अपने आप को खुशबख्त समझने लगी थी, बग़ैर ये जाने के भी ज़िंदगी ने इससे किस किस्म का इम्तहान लेना है, वाकई किस्मत की धनी भी है या। दुल्हन बनी नाजिया को रस्मों के बाद इसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। एक बेडरूम और एक लाउंज पर मुश्तमिल ये छोटा सा फ्लैट भी अंसर को बड़ी तग्गोदो के बाद मिला था। चूँकि अम्मा अपने घर से करीब ही अंसर और छोटी दुल्हन को रखना चाहती थी, लिहाजा अंसर को बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। बिल्डिंग भी साफ़ सुथरी, घर भी खुला तो किराया भी मुनासिब। इन शराइत की कसौटी पर घर मिलना, वो भी अपनी रेंज में, बड़ा मुश्किल था। बहरहाल साफ़ सुथरा हवादार फ्लैट मिल गया था। लाउंज के एक तरफ छोटा सा ओपन किचन था, एक वाशरूम, बेडरूम में तो एक बार खुद अम्मा, अनीला, सलमा और बच्चों के अलावा अम्मा ने अपनी एक बहन और नंद को भी यहीं रोक लिया था। आय हाय, क्या नए दूल्हा दुल्हन को खाली घर में छोड़ दें अकेले? अम्मा ने बड़े बेटे के सवाल के जवाब में अचंभे से कहा था। अम्मा, इतने सारे लोग, वैसी जगह नहीं है। कामरान को झुंझलाए। अरे बेटा, मैं तो तुमको भी कहूँगी, कोई मर्द भी तो हो घर में, अम्मा सादगी से कह रही थी। अम्मा, हद कर दिया आपने, एक कमरे में आखिर कितने लोग रहेंगे? 9-10 तो पहले ही हैं, फिर अंसर तो है ही, और मैं और आफाक सुबह आ जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। सर हिलाते दरवाजे से निकल गए। फजर में अम्मा हस्बे मामूल उठ गई थी। कुछ देर बाद छोटी खाला, फुप्पी जान भी नमाज की अदायगी के लिए उठ गई। नमाज से फारिग होकर अम्मा और छोटी खाला ने तो फिर तकिया संभाल लिया, लेकिन फुप्पो जान को चाय की तलब सता रही थी। अरे मुझे तो सवेरे ही नाश्ता करने की आदत है, अब ये दोनों अनीला और सलमा तो न जाने कब उठें, कम अज़ कम चाय ही मिल जाए, सर भारी हो रहा है। आधी रात के बाद तो मुझे नींद आई थी। फुप्पी जान ने पहलू बदल कर सामने लेटी अनीला और सलमा को लाचारी से देखा। अरे अनीला, उठो, नमाज भी कज़ा हो गई, दूल्हा दुल्हन के लिए भी नाश्ते की तैयारी करनी है। अच्छा फुप्पी जान। अनीला ने करवट बदली, दोबारा गहरी नींद में चली गई। वैसे भी पिछले एक हफ्ते से कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था, जो खुदा खुदा करके तो अब थमा था। अभी तो वलीमे की दावत भी बाकी थी। थकन से इसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। अभी तो इसका इरादा 2 घंटे मज़ीद सोने का था, और फुप्पी जान इसे इतने सवेरे उठा रही थी। कोई तुक भी है? अनीला तो करवट लेकर और लम्हाती सोचती दोबारा नींद की वादियों में चली गई। तब अम्मा ने छोटी खाला को इशारा किया था। खाला 3 प्याली चाय बनाकर साथ कल की लाई हुई डबल रोटी और केक भी ले आई थी। तीनों ख़वातीन ने हल्की फुल्की बातों और रात की तकरीब पर तबसरा करते हुए चाय ख़त्म की। उन्होंने तो चाय की ट्रे एक तरफ की और लेट गईं, लेकिन अम्मा की नफासत पसंद तबीयत ने गवारा नहीं किया और ट्रे उठाकर बर्तन धोकर छोटे से किचन को साफ़ करके बेटी, बहू, बच्चों के रात के कपड़े जो जगह जगह बिखरे हुए थे उन्हें समेटा और तय करते बैग में रखे। घड़ी अब तो 9 बजा रही थी। सारे घर में खामोशी थी। छोटी खाला और फुप्पी जान भी नाश्ता करके दोबारा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। ए अनीला, उठ जाओ। सलमा, तुम भी अब उठ जाओ और जाकर अंसर, छोटी दुल्हन को भी उठाओ, नाश्ता बनाओ, और देखो धूप कैसी चढ़ गई। अच्छा अम्मा, उठती हूँ, सलमा ने जमाई रोकते हुए कहा और उठकर बैठ गई। क्या टाइम हुआ है? अनीला ने कसलमंदी से लेटे लेटे ही पूछा। 9 बज गए। अम्मा अब भी बच्चों का फैलावा समेट रही थी। हाय 9! अम्मा, आपको क्या हो गया? मैं तो समझ रही थी 11 बज गए होंगे। जो आप परेशान हैं, अभी से इनको उठाकर क्या करना है? और आप क्या कर रही हैं? अनीला कुछ हैरान, कुछ उकता कर बोली। तुम सबके कपड़े जूते समेट रही थी। अभी दुल्हन के घर वाले नाश्ता लेकर आ जाएंगे, घर को समेटना चाहिए, और भी मेहमान कोई आ जाए तो क्या देखे। अभी नहीं आ रहे, दोपहर तक आएंगे, बेपरवाही से बोली। तो क्या इनके आने के बाद ही उठोगी? अब अम्मा भी चिढ़ गई थी। आखिर इनके खाने के लिए भी तो कुछ तैयार करना है या नहीं? आवाज़ का वॉल्यूम भी बढ़ गया था। तब अनीला बालों को लपेटती, आंखें मसलती उठ गई। सलमा इससे पहले वाशरूम जा चुकी थी। क्या पकेगा? अनीला माँ के बराबर बैठती हुई बोली। पुलाव, कढ़ाई और कोई मीठा बना लो। अम्मा ने पहले से मेन्यू तैयार कर लिया था। अनीला ने सुनकर सर हिलाया। मालूम था अम्मा बाज़ार से कुछ नहीं मंगवाएंगी। सलमा और अनीला नाश्ते से फारिग होकर सफाई करके किचन में घुस गईं। 10:30 तक अंसर भी लाउंज में आ गया, और इसके कुछ देर बाद छोटी दुल्हन भी गुलाबी कामदार जोड़े, हल्के मेकअप, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने आ गई थी। अम्मा और अनीला सलमा ने मुस्कुराकर गले लगाकर इसका इस्तकबाल किया। सोफे पर बैठती दोनों के लिए हल्का फुल्का नाश्ता लगा दिया गया।
अंसर के चेहरे की मुस्कुराहट और दुल्हन का शर्मीला और झींपा झींपा सा रूप सबको इत्मीनान दिलाने के लिए काफ़ी था। दोपहर तक दुल्हन के घर से चंद मेहमान रस्म के मुताबिक आ गए थे। वलीमा चूँकि अगले दिन था, अम्मा ने दुल्हन को इनके साथ रवाना कर दिया कि घर वालों से मिलकर आ जाए। वलीमे की तकरीब भी बखैर आफियत अंजाम पा गई। रूटीन की ज़िंदगी तो अब शुरू हुई थी। अंसर ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टियां ली हुई थी। वलीमे के अगले दिन दोनों दोपहर तक आ गए थे। अम्मा और सलमा ने खाने पर ख़ास एहतमाम किया हुआ था। अनीला भी अभी अम्मा के घर मौजूद थी। बच्चे भी दुल्हन चाची दुल्हन मामी के आगे पीछे बड़े इश्तियाक से फिर रहे थे। 2 दिन इसी तरह मामूल रहा। अंसर की छुट्टियां ख़त्म हुई तो नाजिया ने अंसर के ऑफिस जाने के बाद इसकी इजाज़त से अपने भाई को बुला लिया था। वो एक दिन रुकने के लिए जाना चाह रही थी, जिसकी अंसर ने बखुशी इजाज़त दे दी। अगले दिन वापसी में नाजिया को मैके से लेता अम्मा से मिलवाने लाया था। अच्छा बेटे, कल तुम दफ्तर जाते हो, दुल्हन को यहाँ छोड़ते हुए जाना। बातचीत के दौरान अम्मा ने जैसी याद दहानी कराई। सुबह अंसर चौंका था तो नाजिया भी सास को देख रही थी। मगर अम्मा, चंद लम्हे रुका। मैं तो सुबह 7:30 तक निकल जाता हूँ और आपको मालूम है कि दफ्तर की गाड़ी आती है। इतनी सुबह इसे कैसे छोड़ूँ? अंसर ने माँ को सवालिया नज़रों से देखा तो इससे ज़्यादा अम्मा की मुतफक्किर नज़रें इन दोनों पर थीं। तो बेटे, दुल्हन सारा दिन कैसे अकेली रहेगी? अम्मा के लिए एक सवालिया निशान था जिसका हल ढूंढना बेहद ज़रूरी था। तुम ऐसे करो ना कि दफ्तर जाने से पहले दुल्हन को यहाँ छोड़ो, फिर घर में अपनी बाइक खड़ी कर देना। बाइक पर तो आने जाने में बमुश्किल तुमको 10 मिनट लगेंगे। अम्मा बेटे को बड़े रसान से मसले का हल बता रही थी तो दूसरी तरफ नाजिया का सुनकर दिल ही उछल गया कि वो इतने सवेरे नींद कुर्बान करके तैयार होकर यहाँ आ जाए। अम्मा, मैं शाम को ले आऊँगा ना, रात का खाना हम यहीं खाएंगे। अंसर ने जैसे माँ की परेशानी ख़त्म करनी चाहिए। नाजिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। वो भी ज़ोर से तायद करना चाह रही थी, लेकिन दुल्हन आपे का लिहाज करके खामोश रही। अरे तो शाम तक ये निमानी अकेली रहेगी? क्या खाएगी, क्या पिएगी? घर में तुम्हारे को इतना सामान थोड़ी है कि खाना वगैरह ही पका ले। अम्मा को मज़ीद परेशानी ने आ घेरा। अब मैं इसे अकेले भी तो आने का नहीं कह सकती। 4 दिन की दुल्हन इस तरह। अम्मा सोच में पड़ गई। अम्मा आप परेशान ना हो, मैं कुछ सामान वगैरह ले लूँगा, बर्तन तो हैं हमारे पास। जी अम्मा, आप परेशान ना हो। अब के नाजिया भी सास की फ़िक्र दूर करना चाह रही थी, लेकिन अम्मा के जहन में क्या चल रहा था वो दोनों नावाकिफ़ थे। बात सुने, नाजिया आईने के सामने जेवर उतार रही थी जब इसने मियाँ को मुखातिब किया। मैं इतनी सुबह कैसे? प्लीज़ अम्मा को आप कह दीजिए। और अम्मा क्या सिर्फ कल के लिए कह रही थी या रोज़ाना? नाजिया अटकते हुए बोली। इसका तो इस सोच कर ही दम निकल रहा था कि सुबह 7 या 7:30 तक उठकर तैयार होकर उफ़। असल में अम्मा की भी परेशानी बजाए, एक तो हम इनके घर में गुंजाइश ना होने की वजह से दूर हो गए, फिर दूसरी तरफ तुम वहाँ भी ना जा सको। अंसर ने माँ की हिमायत में कहा। तो क्या फिर आप? अल्फाज हलक में फंस गए थे। दूसरी तरफ दुपट्टे की पिन भी बालों में कहीं फंसी थी। उफ़ो, इसने झुंझलाकर दुपट्टा खींचा। अरे क्या कर रही हो? अंसर चंद कदम आगे बढ़ा, नरमी से इसके बालों से दुपट्टे को आज़ादी दिलाई, साथ दिल को भी डहारस दिलाई। नाजो, सुबह सुबह छोड़ना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। अगर मैं दफ्तर की गाड़ी में ना जाऊं, बल्कि पहले तुमको छोड़ दूं, फिर बाइक पर ऑफिस जाऊं। लेकिन अंसर भी शशोपंज में पड़ गया था। चलो देखते हैं, फ़िलहाल आराम करो, इसने बीवी के परेशान चेहरे को देखते हुए कहा। और नाजिया ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर सर हिलाने लगी थी। अंसर को दफ्तर रवाना करके इसने अपना बचा हुआ नाश्ता पूरा किया और दोबारा बिस्तर पर दराज हो गई। वैसे भी वो इस वक्त क्या करती? 10 बजे तक उठ जाऊंगी, इसने सोचा और घड़ी की तरफ देखा जो 7:45 बजा रही थी। सुकून से चादर ले ली। मौसम बदल रहा था, रात में ठंड होनी शुरू हो गई थी। खिड़कियों के पर्दे बराबर करने के बाद कमरे में पुरसुकून एहसास तारी था। वैसे भी अभी कोई मासी का बंदोबस्त नहीं किया था। आस पड़ोस में अगरचे इसने सफाई वगैरह के लिए कहा था, लेकिन अभी कोई आया नहीं था। वो गहरी नींद में थी जब इत्तलाई घंटी की तेज़ आवाज़ ने इसकी नींद तोड़ी और साथ तन्हाई भी। नाजिया ने चादर हटाई, साइड पर रखा दुपट्टा घसीटा और स्लीपर पैरों में डाले। ये इस वक्त कौन आ गया? मुंदी आंखों से बुड़बुड़ाते हुए इसने दरवाज़ा खोला तो 7 आंखें भी पूरी खुल गईं। अस्सलाम वालेकुम, कुछ गड़बड़ाते हकलाते इसने सास पर सलामती भेजी थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उन्होंने सोती दुल्हन को गले लगाया। पीछे कामरान खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप अंदर आएँ। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने ज़ुबान के साथ गर्दन भी हिलाई और माँ के पीछे चले आए। लाउंज में आकर उन्होंने हाथ में पकड़े 2 बड़े शॉपर्स मेज़ पर रखे और पलट गए। अच्छा अम्मा, मैं चला। उन्होंने अब के हाथ हिलाए और दरवाजे से बाहर निकल गए। हाँ हाँ, अल्लाह की हिफाजत में।
अम्मा ने बेटे को अल्लाह की अमान में देते बहू को देखा, जिसका चेहरा सास को खिलाफ तवक्को देकर कुछ हवनक सा था। बेटी, मैंने सोचा कि जब तक अम्मा के अल्फाज दरमियान में ही रह गए थे, लाउंज की हालत ही कुछ ऐसी थी। अम्मा ने अब किचन की तरफ नज़रें घुमाई, वहाँ भी अफ्तर ही नज़र आ रही थी। उन्होंने ना चाहते भी नज़रें घर के वाहिद कमरे की तरफ घुमाई, जो कि लाउंज के खुले दरवाजे से किसी हद तक नज़र आ रहा था। पलंग पर, कुर्सी पर, सोफे पर कपड़े औंधे सीधे पड़े थे। एक तरफ गीला तौलिया था तो दूसरी तरफ चादर नीचे लटक रही थी। ड्रेसिंग पर बेतरतीबी से जेवर था, तो कुर्सी पर कुछ फाइलें और कागजात औंधे पड़े थे। अम्मा बैठिए, इसने सोफे की तरफ इशारा किया। वहाँ भी कुछ कपड़े पड़े थे। कहाँ बैठूं? अम्मा के सवाल के अंदर जो गहराई और चोट थी, इससे नाजिया को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। वो बस रात इतनी देर हो गई, फिर सुबह भागम भाग। तुमने क्या अभी नाश्ता भी नहीं किया? ये दूसरा सवाल मज़ीद शर्मिंदा करने वाला था। अम्मा की नज़र अब लाउंज की वाहिद छोटी मेज़ पर थी, जहाँ खुली डबल रोटी, मक्खन, जैम और चाय के 2 कप रखे थे, जिस पर मक्खियाँ शोगल फरमा रही थी। ना, नहीं, मैंने तो अंसर के साथ ही। तो ये बर्तन अभी तक? अम्मा ने कुछ सोचकर अल्फाज को मुंह में ही रोका। क्या तुम अभी उठी हो? जी। शर्मिंदगी से इसका सर झुका था। अच्छा चलो खैर है, अभी नई नई जिम्मेदारी आई है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ही संभालोगी। बस मैंने सोचा तुम्हारा आना मुश्किल है तो मैं ही आ जाती हूँ। अब अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर नाजिया के तने हुए असाब कुछ ढीले पड़े थे। कामरान इसी टाइम निकलते हैं, उन्होंने कहने के साथ घड़ी देखी जो 11 बजा रही थी। बल्कि आज तो कुछ देर भी हो गई। खैर, सलमा ने हंडिया चढ़ा दी थी, रोटी भी पक गई थी। मैं खाना और कुछ ज़रूरी सामान ले आई। बल्कि ये थैला दो मुझे, इसमें आलू हैं। सलमा तो कह रही थी कि बस आलू डालने हैं, लेकिन कामरान को पहले मेरी वजह से देर हो गई थी। मैंने कहा रहने दो, मैं खुद ही डाल दूँगी। अब ऐसा करो, ये पतीली तो वहाँ रखो, मैं आलू छील देती हूँ, तुम सालन में डाल देना। अब अम्मा शॉपर से सालन निकाल रही थी। जी जी। नाजिया ने सर हिलाया, तेज़ी से उठकर पहले पतीली चूल्हे पर रखी। जल्दी से नाश्ते के बर्तन। इसके बाद तो जैसे इसके हाथ पैर में पंखे से लग गए। तेज़ी से बिखरे बर्तन, कपड़े, जेवर, कागजात सभी समेटे थे और जगह पर रखे थे। ए बेटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी तो तुम्हारी मेहंदी भी ना उतरी और तुम कामों में लग गई। अम्मा दिल वाकई महसूस कर रह गई थी। तुम यहाँ पड़ोस में मालूम करो, किसी काम वाले का बंदोबस्त हो जाए। जी मैंने कहा है, अंसर भी कह रहे थे। वो अब लाउंज की सफाई कर रही थी। वैसे तो तुम दो जी, काम ही कितना होता है, फिर घर भी दो, कमरे भी दो। लेकिन बहरहाल अम्मा ने कुछ भी न कहा और कह भी गए कि मज़ाक नाजिया को ढके छुपे लफ्ज़ों में किफ़ायत शायरी का पैगाम दे दिया था। फिर अम्मा का ही रोज़ का मामूल बन गया था और नाजिया अम्मा रोज़ मैं कामरान के साथ आ जाती। खाने पकाने का सामान अब अंसर भी ले आता, वरना वो अपनी मर्ज़ी से गोश्त सब्ज़ी वगैरह ले आती। फिर नाजिया इनके कहे के मुताबिक इसे पका लेती। अपनी सफाई पसंद आदत से मजबूर अम्मा को नाजिया के काम पसंद नहीं आते, जिस पर कभी नरमी कभी सख्ती से सरजनिश भी कर देती। अरे क्या आज अंसर को खाना नहीं दिया? किचन में इन्हें अंसर के खाने का बर्तन जो वो दफ्तर लेकर जाता था नज़र आया तो उन्होंने ताज्जुब से पूछा। मगर खाना तो इतना था कि वो अम्मा, मैंने सुबह खाना गर्म किया तो इसमें कुछ बात सी आ रही थी। क्यों, क्या फ्रिज में नहीं रखा था रात? जी वो रह गया। नज़रें झुकाए कह रही थी, हद हो गई भाई। अब तो वो निमाना बाजार से लेकर खाएगा। कोई 200-300 से कम कुछ आता है भला? वो नाराज़ थी। ए बेटी, ज़रा मुझे चाय तो दे दो। आज कामरान ने ऐसी दुहाई मचाई कि चाय तक ना पी सकी। सलमा ने तो बना दी थी, लेकिन गर्म इतनी थी कि मुझे आगे रखी चाय छोड़नी पड़ी। सर भारी हो रहा है। आज अम्मा सवेरे ही आ गई थी। अभी तो बमुश्किल 9 ही बजे थे। आज नाजिया की भी आंख लग गई थी। अंसर के जाने के बाद नाश्ते के बर्तन धोकर कुछ देर ज़रूर लेटती थी। जी अम्मा, ताबेदारी से बोली, लेकिन उफ, दूध जोश देते हो फट गया था। और वजह रात भर लाइट का ना होना था, जिसकी वजह से दूध ठंडा ना हो सका। अंसर आते हुए दूध, डबल रोटी वगैरह ले आया था और शाम भी वो लेकर आया था। नाजिया ने दूध की थैली फ्रिज में रखी, फिर इसे ध्यान न रहा कि उबाल लेती। सुबह नाश्ते में इसने पाउडर का दूध जो थोड़ा सा रखा था, इसे डालकर चाय बना ली थी, लेकिन अब बराबर वाली आंटी से ले लेती हूँ। एक ख़्याल आया, इसने इस पर फौरी अमल किया। दुपट्टा ठीक से ओढ़ती इसने अपनी राहदारी में कदम रखा था कि ए नाजिया, कहाँ जा रही हो बेटी, मुझे चाय तो बना दो। वो अम्मा, असल में दूध नहीं है तो बराबर से इसकी ज़ुबान अक्सर साथ छोड़ जाती। अरे ये अंसर इतना लापरवाह कब से हो गया? घर में दूध चीनी ना हो? नहीं नहीं अम्मा, वो शाम को ले आए थे, लेकिन लाइट नहीं थी तो दूध फट गया। और अम्मा को तो इस सुनकर तप ही चढ़ गई। रहने दो, मैं यूं ही भली। भला दूध कोई सस्ता है? हद है बीबी तुम्हारी बेपरवाही की। आज वो सचमुच सास बन गई थी।
मैं बस अभी, नाजिया ने जुमला अधूरा छोड़ा। तेज़ी से दरवाजे से निकलती 2 मिनट में ही एक प्याली दूध लेकर आई थी और अगले 5 मिनट में अम्मा के हाथ में चाय की प्याली थमा चुकी थी। लेकिन अम्मा का मूड बहाल ना हो सका। वो सारा दिन उन्होंने खामोशी से गुजारा था। नाजिया के लिए ज़िंदगी की इम्तहान की सूरत में ढल चुकी थी। अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ था। इसे ऐसा महसूस होने लगा कि इस इम्तहान का हर सवाल लाजमी नहीं, पेचीदा और मुश्किल भी है। अम्मा की रोज़ की आमद, फिर इनकी नुक्ताचीनियाँ, एतराज़ात, अपनी नफासत पसंदी, सलीका शारी, नाजिया की बदसलीकी, उनकी कफ़ायत शारी और बहू की फजूल खर्ची, ज़िंदगी मुश्किल तर होती चली जा रही थी। अम्मा अंसर के आने के बाद घंटा भर मज़ीद रुकती। बेटे से बातचीत करके अंसर इन्हें घर छोड़ देता। वापसी में से नाजिया के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ता। ना तो वो माँ को ही कुछ कहकर जन मुरीद का टैग लगवाना चाहता था, ना ही नई नवेली दुल्हन को नाराज़ करना चाहता था, जो कि इसके दिल को भा चुकी थी। आज इतवार का दिन था, हफ्तावार छुट्टी। 2 दिन कबल ही नाजिया ने अंसर से बड़े लाड से फरमाइश की थी कि इस छुट्टी वो अम्मा के यहाँ दिन गुजारने के बजाय साहिल समंदर पर जाएंगे। शादी को 1.5 माह हो गया था और अब तक उन्होंने हर इतवार ससुराल में ही गुजारी थी, या फिर कभी कोई दावत आ गई वहाँ चले गए। अंसर ने मुस्कुराकर हामी भर ली। वैसे भी इसका पूरा हफ्ता ही दफ्तर में बड़ा सख्त शेड्यूल होता था। नाजिया ने रात को ही अपने और अंसर के कपड़े निकाल कर इस्त्री कर लिए। सुबह इत्मीनान से दोनों 10 बजे तक उठे। नाश्ता करते 11 बज गए। अंसर के जल्दी जल्दी करने के बावजूद जब वो दरवाज़ा लॉक कर रही थी तो घड़ी 12 बजा रही थी। आगे पीछे दोनों सीढ़ियाँ उतरे और जब अंसर अपनी बाइक पर बैठ रहा था तो किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ मारा। अरे मियाँ, कहाँ की तैयारी है? यानी कि मेहमान आ रहे हैं और मेज़बान गायब? यानी कि इतने बुरे लग रहे हैं हम तुम्हें? आने वाले का लहजा तो नहीं, अल्फाज में तंज था। भाई मियाँ आप? अंसर ने गर्दन घुमाई और बहनोई को देखकर बुरी तरह चौंका। तुम लोग कहाँ जा रहे थे? आफाक के पीछे अनीला थी, तीखे लहजे में पूछती। ससुराल। नहीं, अंसर बाइक से उतरा, बस यूं ही। इसने ज़बरदस्ती होंठ फैलाए। भाई मियाँ आप कैसे हैं? मुझे आपके आने का पता नहीं था। जिस पर आफाक ने गर्दन घुमाकर बीवी को चुपती नज़रों से देखा। हाँ तो मैंने सोचा सरप्राइज़ देंगे। अनीला ने जल्दी से बात बनाई। आज हम तुम्हारे घर छुट्टी मनाएंगे। अरे ये अम्मा कहाँ हैं? इसने गर्दन घुमाई तो अम्मा छोटे बच्चे को शायद कुछ दिलाने रुक गई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए भाई मियाँ, आओ अनीला। इसने वापस सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ आखिरी सीढ़ी पर खड़ी नाजिया ये सब देखकर बर्फ़ की बन चुकी थी। वो जो बड़े जोश में प्रोग्राम बनाकर घर से निकली थी, इतने ही मरे मरे कदमों से वापस सीढ़ियाँ चढ़ी थी। और वो सारा दिन बड़ा थका देने वाला था। दोपहर के खाने की तैयारी, फिर शाम में चाय के साथ लवाजमात, बर्तनों का ढेर। रात के 9 बजे जब वो लोग गए तो अंसर इन्हें छोड़ने नीचे तक गया। जब ऊपर वापस आया तो नाजिया बेड पर औंधे मुँह पड़ी थी। अंसर ने इसे कितनी आवाज़ें दी। प्लीज़ अंसर, इस वक्त मुझसे बिल्कुल बात ना करें। वो रूहानसी सी हो रही थी। देखो इधर देखो मेरी तरफ, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था ना, मैं तो खुद लाइल्म था। अच्छा चलो हम अभी चलते हैं, इस वक्त तो और भी खूबसूरत मंजर होगा। चांदनी रात, ठंडी हवा, वापसी में गोलगप्पे और आइसक्रीम। इसने थकावट के बावजूद इसका मूड बहाल करने की कोशिश की। नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना, तकरीबन चिल्ला कर बोली थी। अच्छा तो ना जाओ, किस पर एहसान कर रही हो? अंसर भी जवाबन तल्ख हुआ और पैर पटकता बाहर जाकर बैठ गया। अगले दिन अंसर के घर से जाते ही इसने अपनी अम्मी को फ़ोन कर दिया था, फ़ौरन भाई को भेज दें, 2-3 दिन के लिए मैं क्या आना चाहती है। वैसे भी इसे रहे काफ़ी दिन यहाँ हो गए थे। पिछली इतवार को अम्मा के घर से शाम को 1 घंटा भर के लिए गई थी। अंसर के ऑफिस जाते ही तेज़ी से बर्तन धोए, घर समेटा, अपने चंद जोड़े बैग में रखे। भाई को इसने 9 बजे ही बुला लिया था। हारन सुनते ही तेज़ी से नीचे उतरी। अम्मा के आने से पहले पहले चली जाना चाहती थी। गाड़ी में बैठकर इसने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन ये इत्मीनान आर्जी था। सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा था कि अंसर का फ़ोन आ गया। मैं अम्मी के घर हूँ। अंसर के सवाल के जवाब में इसने सुकून से कहा। तो कम से कम बता तो देती। दरवाजे पे अम्मा खड़ी घंटी पे घंटी बजा रही हैं। कामरान भाई भी इन्हें नीचे से छोड़कर चले गए थे, इतना तो वो परेशान हुई। उनके पास मोबाइल भी नहीं था। बराबर वाली आंटी से मेरे नंबर पर फ़ोन करवाया। मैं ख़ुद परेशान हो गया। हद होती है लापरवाही और गफलत की। अंसर दफ्तर से इसे सख्त तैश में सुना रहा था। नाजिया के लब काटते इसकी बातें सुन रही थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अंसर का फ़ोन रखने के कुछ ही देर बाद अम्मा का फ़ोन नाजिया की अम्मी के पास आया था। वालेकुम। अम्मी के सलाम के जवाब में सर्द लहजे में उन्होंने इतना कहा, खूब, बड़ी अच्छी तरबियत करके तुमने बेटी को रुखसत किया।
अरे मेरी खैरियत क्या पूछती हो, अपनी बेटी के मिजाज की खबर लो। सास का घर आना इतना ही बुरा लगता है तो भाई मुंह से कह दो, ये क्या ताला लगा कर चलती बनी। अम्मी के खैरियत पूछने पर उन्होंने अम्मी को बेतकान सुनानी शुरू कर दी। अरे मेरे बेटे का घर है, या वो जहेज़ में लेकर आई थी, मैं इसकी इजाज़त से आऊँ और जाऊँ। मैं तो बेटे बहू की मोहब्बत में कुर्बान होती गई, खूब सिला दिया तुम्हारी बेटी ने। दीदों का पानी मर गया, सलीका ना कफ़ायत शारी, सास ना नंदोई का आना इतना बुरा लगा कि। आपा क्या कह रही हैं, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। नाजिया हरगिज़ ऐसे नहीं। अम्मी तो परेशानी हो गई थी, लेकिन नाजिया के इस इक़दाम को उन्होंने अपनी और अपने दामाद की बेइज्जती समझा था। बात मामूली होती, अगर कुछ कह सुनकर दरगुजर कर दी जाती, लेकिन अम्मा ने तो इसे राय का पहाड़ बना दिया था। अरे शादी को जुमा जुमा 8 दिन हुए और ससुराल वालों को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहती है। मुझे तो ये लड़की पहले दिन से समझ नहीं आई, ज़रा सलीका नहीं इसमें। शाम को फिर वो गुस्सा उतार रही थी। अम्मा आप छोड़ भी दें, गुस्सा थूकें, देखें वो लोग शर्मिंदा है ना। फिर आप अपने बेटे को देखें, इस एक हफ्ते में कैसे इसका मुंह उतर गया। कामरान आज फिर बैठे अम्मा को रसान से समझा रहे थे। सलीका आते आते ही आता है, वैसे भी वो कम उम्र है, आप सिखाएंगी तो सीख जाएगी। चले नाजिया को लेने चलते हैं। वाह बेटे वाह, माँ पराई हो गई और वो गैर अपने हो गए। माँ को नीचा दिखाना चाहते हो, मेरे सर पर खाक डलवाना चाहते हो। आज तक तो लोग दोनों समधियानों में मेरी इज्जत बनी रही, तुम चाहते हो अब इनके सामने मैं नीची हो जाऊं। अम्मा ने दांत पीसे। अंसर, उन्होंने गर्दन मोड़कर अंसर को कड़ी नज़रों से देखा तो जब दफ्तर से सीधा माँ के पास चलाया था। क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं इनके सामने अपनी नाक रगड़ूं? नहीं नहीं अम्मा, बुरी तरह गड़बड़ाए, मैं भला क्यों। अम्मा आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं, मेरे कहने का ही मतलब नहीं है। आप इसे बेटी बना कर लाई हैं तो बेटियों की तो बहुत सी बातें दरगुजर करते हैं, तुम तो खामोश ही रहो कामरान। न जाने तुम्हारे कान भी किसने भर दिए। उन्होंने बड़ी बहू को तपती हुई नज़रों से घूरा था, जिसके जवाब में हड़बड़ा कर रह गई। इसके बाद मामला बजाय सुलझने के रेशम की डोर की तरह उलझता ही चला गया। दोनों बेटों ने माँ को समझाने की बेहतरी कोशिश की, लेकिन बेसुध। दूसरी तरफ नाजिया भी अड़ चुकी थी। इसने भी अंसर को कह दिया कि वो इस रवैये के साथ वापस नहीं आएगी। वैसे भी रोज़ रोज़ अम्मा के दखल दर माकुलात बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इतनी जल्दी उनकी मर्ज़ी के सांचे में भी नहीं ढल सकती। बहुत जल्द इसने हौसला छोड़ा था। यूँ दोनों तरफ से ही आग और बारूद का तबादला होता गया, और सिर्फ अगले 1 माह के अंदर ही वो संजोग जो बड़े चाव मान और मोहब्बत से जोड़ा गया था, इसका अंजाम दर्दनाक था। हाथ में वो कागजात थामे नाजिया का जिस्म हौले हौले कांप रहा था। वो किस्मत की सितम ज़रीफ़े पर नोहा का ना थी। एक तलाकनामा था तो दूसरे पर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की नवीद। पिछले चंद दिनों से वो चक्कर मतली का शिकार थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए थे और अम्मी का अंदेशा दुरुस्त साबित हो गया। एक दूसरा वजूद इसके अंदर परवरिश पाने लगा था। ये खबर इसे जब मिली, जब सैलाब गुजर चुका था, वो अपनी किस्मत पर रो रो कर थक चुकी थी। जैसे तैसे ही दिन भी गुजर गए। बेटे की पैदाइश की खबर अम्मी ने इसके ससुराल कहलवा दी थी, ताकि बाद में कहीं एक दफ़ा फिर इन्हें पकड़ा ना जाए। नाजिया का नाजुक दिल कांपता रहा कि कहीं वो इससे बच्चा ना छीन ले, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। खामोशी से 1 साल गुजर गया। आज इसके बेटे निहाल की सालगिरह थी। सिवाय इसके ये दिन किसी को तो याद था, ना ही इसकी खुशी मनाने की ज़रूरत थी। नाजिया ने नम आँखों से बेटे को नए कपड़े पहना दिए थे। अम्मी, अब्बू और भाई इसका और बच्चे का ख्याल रखते थे, लेकिन नाजिया को चुप लग गई थी। वो अपने हिस्से के काम करके कमरे में आ जाती। लगता था अब इसकी कुल कायनात इसका बेटा है। इस रोज़ घर वाले किसी से मिलने गए हुए थे। वो दोनों घर में तन्हा थे। जब शाम को दरवाजे पर घंटी बजी, इस वक्त पड़ोस के बच्चे इसे ट्यूशन लेने आते थे। इसने अभी दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही इसे ऐसा लगा इसकी सांसें थम गई हैं। कितने ही लम्हे चुपचाप गुजर गए। मासूम आवाज़ों ने सकूत को तोड़ा था। मेरा बेटा। आने वाले ने झपट कर बच्चे को उठाया और बेख्तियार इसको चूमने लगा। नाजिया के कदम भारी होने लगे थे, आंखें पानियों से भरने लगी। आप क्यों आए हैं? कपकपाते अल्फाज बमुश्किल अदा हुए थे। अपने बेटे से मिलने? क्या मिलने भी नहीं दोगी? थके हुए लहजे में पूछ रहा था। आज मेरे बच्चे की सालगिरह है। कितना बदनसीब हूँ मैं, जिसे अपने बच्चे का नाम भी नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम था, लेकिन तारीख याद थी। निहाल बाप की गोद में अब मचलने लगा था। इसने माँ की तरफ हाथ बढ़ाए। मैं चंद मिनट अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, प्लीज़। तब दांतों तले होंठ दबाते इसने रास्ता छोड़ दिया। निहाल के मचलने के बावजूद अंसर ने इसे गोद से नहीं उतारा था। अंदर आकर वहीं सैन में बिछे तख्त पर बैठ गया। अपने साथ लाए 2 बैग इसने वहीं रख दिए थे। नाजिया सर झुकाए आंसू पीते एक तरफ खड़ी हो गई।
कहने सुनने को दोनों तरफ कुछ ना था। चंद लम्हे इसने बेटे को सीने से लगाए रखा, फिर इसके रोने पर इसे गोद से उतार दिया था। अब निहाल तख्त पर बैठा था, माँ की तरफ छोटे छोटे अब कदम उठा रहा था। नाजिया मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ना कर सका। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी, लेकिन नाजिया तक पहुँच रही थी। मैंने इस 1.5 साल के अरसे में बहुत चाहा था कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम दोनों फिर पहले की तरह, लेकिन सारी कश्तियाँ तो मैंने अपने हाथों से जलाई। हमारा घर तो कांच का घर साबित हुआ। हल्की सी ठेस से ज़मीन बोस हो गया। वो टूटे लहजे में जो कह रहा था, नाजिया सांस रोके सुन रही थी। तो इसका मतलब था कि अंसर भी, काश मैं इस कांच के घर को मजबूत कर सकता, काश। वो अब खड़ा हो गया था वापसी के लिए। ये मैं निहाल के लिए कुछ चीज़ें लाया था, इसको रख लेना, और मुझे इतनी इजाज़त देना कि मैं कम अज़ कम इसकी सालगिरह पर तो आकर इसे देख सकूं। अंसर ने एक ज़ख्मी निगाह नाजिया पर डाली। चंद लम्हों के लिए दोनों की निगाहें मिलीं और एक ने नज़रें चुराईं तो दूसरे ने झुका ली। अंसर ने तेज़ी से कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुका और बग़ैर मुड़े ही इसने पहले हथेली की पुश्त से चेहरा साफ किया, फिर धीमी आवाज़ में बोला, हो सके तो मेरी माँ को माफ़ कर देना। दरवाज़ा बंद कर लो। इसने चौखट फलांगी और बाहर गली में आ गया। पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था, इसकी आरज़ुओं की तरह। नाजिया की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ इसे यहाँ तक आ रही थी। वो शायद दरवाजे से ही लगी खड़ी थी। वो घर से गया था, लेकिन दिल से कोशिश के बावजूद भी नहीं। अंसर, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पछतावे के नाग फिर से डसने लगे थे। काश अम्मा आप सलीका शार होने के साथ साथ मामला फ़हम भी होती। अंसर ने दिल में सोचा और हारे हुए शख्स की तरह सड़क की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। ये कहानियाँ अपने इख्तिताम को पहुँची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।